will explain one by one. Like, for example, if you talk about what is transportation or what is transport, ओवरऑल अगर हम जनरली बात करें, गुलबुद्दीन आप अगर लिखना भी चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, right? जब भी हम लोग जी 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 कम अगेन सर आपने कुछ कहा लेकिन असल में वो सिग्नल्स थोड़े से वीक थे तो मैं ना सुन सका काइंडली कुड यू रिपीट इट हाँ गुलबुद्दीन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट आप प्लीज अपने माइक को आप ऑफ कर दें इफ अगर आपका किसी भी टाइम कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन जंप इन डायरेक्टली शाहजेब आपका भी मैडम आपका भी ठीक है आई डोंट नो व्हाट अबाउट द अली एंड अदर स्टूडेंट दैट व्हाई दे डिड और Gulbuddin also contact with Ahmed Faraz and Ghazan Khan to join as well, okay? ठीक है ना? Okay. अच्छा, तो what is transport or transportation? जब भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं या ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो एक चीज आप लोग समझ लीजिए, when we talk about transportation, that means जब हम we would like to move from origin to the destinations. What is origin? What is destination? Origin from where you are now and destination where you want to be. Or we can call that a movement in terms of a distance. Okay. If we talk about the transport, so look, there is two different them, okay? If someone asks you that what is transport or what is transportation, in generalized way, we consider them as a one, okay? But in the conceptual way, both terminology have different definition. If you talk about the Gulbuddin, madam, Shahzeb Khan, if you are getting my voice, try to make your own notes, okay? जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट मीन्स मोड ऑफ मूविंग in which we would like to refer it towards the movement in terms of the distance. I'm talking about transport. But when we talk about transportation, so this is basically the movement of a goods or people or stuff from origin to destination from point A to point B. But for the purpose of what? To accomplish the movement. Okay, if you are not getting movement in terms of a distance, अगर आम से अल्फाज में आप डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे तो इसका मतलब ये है that you are doing the forth and back motion where you are actually rotating within the same place. Okay, so this is very much important कि ट्रांसपोर्ट में और ट्रांसपोर्टेशन में फर्क बेसिकली क्या है. ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, और जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं वी आर रेफरिंग टुवर्ड्स द मोड. ठीक है, मोड इज रेफरेंस टुवर्ड्स द मोमेंट इन टर्म्स ऑफ अ डिस्टेंस. क्लियर हो गया ना? ट्रांसपोर्ट मीन्स द मोड वो जरिया जिसके जरिए आप ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक जाना चाहते हैं. वन इज ट्रांसपोर्टेशन, one is the process, exactly. This is the mode. But transport means the mode through which you want to move or you want to accomplish the moment. Okay, one is transportation, which is completely reference to the whole system. But when we talk about the transport, so it means that we are only reference towards the mode of moving. Next पॉइंट है हमारे साथ, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ओके, एग्जैक्टली. जब भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करेंगे, हियर वी आर रेफरेंस टुवर्ड्स द नेटवर्क, हियर वी आर रेफरेंस टुवर्ड्स द नोड्स, हियर वी आर रेफरेंस टुवर्ड्स द इंटरसेक्शन, हियर वी आर try to build the relation between different nodes, networks and demand. ठीक है ना? अब यहां पर एक फंक्शनल रिलेशनशिप का जिक्र आप लोग अपने नोट्स में आप लोग लिख ले. फंक्शनल रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज नोड,
network and mode. Node, network and modes. What is node, sir? Node. This is, for example, origin A. This is, for example, origin B. Okay. That one we overall call it network. Okay. But this is very ideal line, which usually did not exist. So if there are few points, this is overall or like kind of a network. Yes. But if you would like to go from here to there, so this path may be somehow like that, like a spiral network. Got it. So these are the nodes which help you to follow the network to reach from A to B. With the help of mode. Mode is without mode, it's not possible that you should accomplish the movement. So movement is very much important. If you are not getting the moment in terms of the distance, it's not even. So this is, we cannot call it a transportation. Okay. So ये फर्क हो गया transportation system के बारे में. So the next topic is about transportation system engineering. When we talk about transportation system, I would like to request to each and everyone that please write out this definition, because our program is always about transportation system engineering. Okay, so please write it down. Transportation system engineering is referring toward, it's all about planning, design and management. आप लोग देख लीजिए, हम लोग बहुत बड़े बड़े अल्फाज के बारे में बात कर रहे हैं. प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ व्हाट? ऑफ मल्टी मॉडल सर्विसेज. मल्टी मॉडल सर्विसेज. कोई बता सकता है व्हाट इज मल्टी मॉडल सर्विसेज? दोज पार्टिसिपेंट व्हिच आर ऑनलाइन. मैडम गुलबदीन, एनीवन? Yes, sir, like railway with the roads, with the very good. अच्छा, मल्टी मॉडल में अभी आप लोग यहाँ पे है नहीं, चूंकि वरना आई वुड लाइक टू गिव द काइंड ऑफ अ डेमो एग्जांपल. अगर हम लोग पॉइंट ए से बी की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो कंप्लीटली जो सर्विस है या जो फॉर एग्जांपल नेटवर्क है, ये हमारे 3 डिफरेंट मोड्स में डिवाइड किया गया है. The one is only covering with, for example, so-called BRT, bus rapid transit. Another one is covering with the underground metro, while another one is covering with the step-stop service, which we also call the zonal transport mean. ठीक है. अच्छा, मल्टी मॉडल से मुराद क्या है? बेसिकली मुराद ये है कि मैं पॉइंट ए से बी की तरफ जाना चाहता हूं, लेकिन जहां पे मैं जाना चाहता हूं, दैट पाथ इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल विद अ सिंगल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. अच्छा, जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, वी विल ओनली रेफरिंग इट टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, not your private one. Okay, I would also like to suggest to each and everyone that you should write one of my research article with a title is called Downsizing Strategies for Car. Okay, so how we can reduce its moment, how we can limit its moment. Okay, तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जब हम बात करेंगे, तो we will talk about planning, design, मैनेजमेंट ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन. कहां पर इसकी जरूरत हमें कहां पे आती है? वहां पर जहां पर हमारे साथ जो अलमगीर इश्यूज है बड़े बड़े, इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ कंजेशन, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट. तो ये जब हम सिस्टम इंजीनियरिंग की बात करेंगे, तो देखो हम लोग यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बड़े समंदर को एक छोटे से कूजे में या लोटे में उसको बंद कर. When we talk about systems engineering, system is actually reference toward जो ट्रांसपोर्ट को, ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स को, ट्रांसपोर्टेशन प्लानर्स को, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपर्स को,
ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेटर्स को, इन सबको एक ही जगह पे ले आए और इस तरह का एक सिस्टम हमारे साथ बन जाए जो जितनी भी अभी हम आगे स्लाइड्स में है वो मैं आप लोगों से फिर एक वन बाय वन पूछता जाऊंगा कि ट्रांसपोर्टेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, फंक्शन कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से खसूसियात होने चाहिए. दैट पार्ट यू पीपल विल एक्चुअली हेल्प मी. लेकिन ये आप लोग फॉर द टाइम बीइंग समझ ले, जब भी हम सिस्टम की बात करेंगे वी आर रेफरेंस टूवर्ड ए वेरी बिग पिक्चर. ठीक है, आपने नैरो डाउन बिल्कुल नहीं आना. अच्छा, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया. अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में. ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में अब यूजुअली लोगों का एक ख्याल होता है, अच्छा अगर मैं पूछ लूं ना कि व्हाट इज इंजीनियर, मैं एक जगह पे इंटरव्यू के लिए गया था, इट वाज इन 2014 आई थिंक, या नो इन 2015. तो मुझसे एक सवाल किया गया कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, लेकिन जो बंदा सवाल पूछ रहा था he forget about the problem, he just said what is complex engineering. तो आप लोगों के बारे में इसका क्या जवाब होना चाहिए, या इंजीनियर की डिफिनेशन क्या होनी चाहिए? A person who should provide the systematic solution to the unsolved problems. If a person cannot provide a solution, then he did not deserve to call so-called engineer. अब यहां पे अगर आप प्रॉब्लम को लेकर आते हो तो दैट मींस दैट यू आर रेफरेंस टुवर्ड ओबीई सिस्टम, राइट. लेकिन जब हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की जब भी हम लोग बात करेंगे तो इंजीनियरिंग से मतलब ये है कि वो हुनरमंद. हेलो, एनी क्वेश्चन? ओके, सो जब भी इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो यहां पे हम ये बताना चाहते हैं कि वो इंजीनियर या वो हुनरमंद आदमी who can apply its scientific knowledge. किसको? साइंटिफिक नॉलेज आप सीख लेते हो किताबों से, ठीक है, आपने एक नॉलेज यहां पे आपने स्टोर कर लिया और वही साइंटिफिक नॉलेज आप अप्लाई करते हो इन योर फंक्शनल डिजाइन, इन योर फोरकास्टिंग, इन योर एनालिसिस, इन योर फिजिबिलिटी, इन योर डिजाइन, या जो भी आपकी रिस्पॉन्डिंग पोजीशन होती है, जो भी फॉर एग्जांपल आपका वो जिसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर, व्हेनेवर यू टॉक विद देम, यू स्पीक विद देम, ईच एंड एवरीथिंग आपके एक्शन से, आपके प्लानिंग से वो सारी चीजें निकलेंगी जो आपने साइंटिफिक वो नॉलेज सीख के आप यहां पे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर. अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होने चाहिए. इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी कि ट्रांसपोर्टेशन के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होने चाहिए? मैंने पहले उसका जिक्र भी कर लिया. मतलब कि we are talking about the Pakistan or overall? No, overall. हाँ फराज खान, आप काइंडली अपने कैमरे को कैमरा आप काइंडली बंद कर दे, और अगर आप लोगों में से कोई भी फॉर एग्जांपल इस टाइम बिजी है तो इसकी मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, तो इसको फिर आप लोग बाद में भी देख सकते हो और आप इसको सुन भी सकते हो, ठीक है. अच्छा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. वुड यू लाइक टू कमेंट? Would it need to be improved? That kind of like No. I don't understand. No. The meaning is that what characteristic should transportation system have? What, for example, if you are talking about is a transportation engineer, is a transportation developer, what will be your motive to provide what type or what kind of service to the people? Sir, automation. Okay, so the first comment is about automation. Next one we have Shahzeb Khan. Shahzeb Khan, would you like to add something here? Shahzeb, Sir. please. जी Shahzeb, बताइए. Sir. अस्सलाम वालेकुम सर. I'm audible. सलाम. Sir, safety. जी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. अली, थोड़ा सा वेट करें, आपकी इसके बाद आपकी बारी होगी, ठीक है. जी शाहजेब, बताइए. Sir, safety. Now we are talking about characteristics. Very good. Safety is very important element. So safety we have now
Now, two characteristics. The first one is automation. Okay. Second one is safety. Ali, would you like to add something else? Ali? सर मैं तो कैंपस पे हूँ, मैं क्लास ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पे हो रही है सर क्लास? अच्छा अली, आप इस तरह कर लेना, ये B1 में आप आ जाइए। B1 में? हाँ, ये बिल्डिंग है ना, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बने हैं, A1 A2 B1 A2। आप इसके टॉप फ्लोर पे आप देख लें तो आपको फिर दिखाई देगा कि बी एक बहुत बड़ा बी आपको दिखाई देगा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, जल्दी से आ गया सर। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट कैंडिडेट वी हैव अहमद फराज। अहमद फराज खान। गनफाजर अली। गनफाजर। मैडम शबाना। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैडम। सर ओवर क्राउडनेस ना हो, इस तरह की मैनेजमेंट हो कि गुड्स और पीपल कंजेशन। हाँ, इसका मतलब ये है कि कंजेशन रिलीफ उसमें हो, मतलब स्मूथ फ्लो। वेरी गुड। इकोनॉमी को भी हम कर सकते हैं। इकोनॉमिकल होना चाहिए। वेरी गुड, गुड पॉइंट। नेक्स्ट वन, एनीवन वुड लाइक टू ऐड समथिंग एल्स? कि कौन से सर ऑन टाइम? हाँ, यू मीन मैनेजमेंट जाता है, ऑन टाइम सब कुछ। हाँ, रिलायबिलिटी मैडम, ठीक है ना? रिलायबिलिटी, ठीक है मैडम? हाँ, नेक्स्ट वन, एनीवन एल्स? कैरेक्टरिस्टिक कौन से खसूसियात होने चाहिए? सर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, यू मीन्स स्ट्रेंथ मीन्स थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ? सर मतलब अगर हम यहाँ पे यू मीन्स कैपेसिटी। कैपेसिटी। You guys need to be very specific if you want to be a transportation system engineer, okay? Yes, sir. ठीक है, very much specific, क्योंकि आपके जो अल्फाज होंगे that means a lot, okay? और that should be reference toward some type of a kind of a situation जो itself situation को define करे, okay? So for example, if I'm talking about reliability, so it's quite clear that reliability means that if you can depend on, or if you can put all your resources and you want to be dependent on a transport mode, then you want to go from origin A to B. That's it. If you talk about the last one, capacity means अगर किसी भी शहर की population जो है वो is about 1 million है और आपकी जो overall capacity है system की that is not meeting your own criteria, तो आप उस सेंस में भी आपकी कैपेसिटी जो है, आपका सिस्टम वो लेस कैपेसिटेटेड है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए थी वो आपकी नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ पर जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, काइंडली जो लोग ऑनलाइन है, आप लोग अपने माइक को आप लोग काइंडली ऑफ कर दें। अगर कोई सवाल है तो आप लोग यू गाइस कैन जंप एट एनी टाइम प्लीज। अच्छा, ये 5 से 6 जो है ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक हो गए। नंबर 1 सेफ्टी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कंजेशन का। थर्ड है इकोनॉमिकल का। फोर्थ है आपकी रिलायबिलिटी। फिफ्थ है आपकी कैपेसिटी शुड फुलफिल योर कैपेसिटी डिमांड। और आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 बड़े एलिमेंट चल रहे हैं, फास्टर, ओके, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, फिर हम मल्टी मॉडल की बात करें, तो इसका मतलब यह है कि आप जो कम्यूट सेलेक्ट करना चाहते हो, दिट शुड नॉट टेक टू मच टाइम। टाइम इज मनी। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक कंसेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोग इसको ऑनलाइन भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। इसको कहते हैं पुश पुल इम्प्रूव। ये एक पैरामीटर जो था, ये एक इनिशिएटिव लाया गया जर्मनी में, ठीक है, पुश पुल इम्प्रूव। पुश पुल इम्प्रूव का बेसिकली मकसद क्या है? आप लोग एज्यूम कर लीजिए, अगर हम एग्जांपल ले ईरान की या इस तरह के मुमालिक में जहां पे तेल जो है वो बहुत ज्यादा सस्ता है, सो हाउ यू कैन पुश द नॉर्मल पीपल
so that they can also use the local commute as well. तो ये अगर आपका सिस्टम जो है, अच्छा आप लोगों ने नाम सुना होगा पेंटागन का। पेंटागन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन उन लोगों ने बिल्ड की थी। जब मैं 2015 में उसमें जा रहा था तो उसमें जो कारपेट लगा था दैट वाज सो मच कंफर्टेबल। जब आप उस पे पैर लगा देते हो तो वो आपको नीचे हर एक चीज आपकी पैर जो है वो बड़ी कंफर्ट अंदाज में नीचे चली जाती थी। लेकिन पेंटागन इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी वाइज जहां से पास हो रहा था दैट वाज इन फ्रंट ऑफ द कैंप डेविड। कैंप डेविड उसका नीचे था। वो बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन पास करता है पेंटागन का, और फिर पेंटागन जो है दैट इज बेसिकली डीलिंग विद द होल वर्ल्ड। अब जहां से वो पास हो रहा था, एक तो उसकी स्ट्रेटेजिक फिजिबिलिटी अलाइनमेंट जो हुई थी, आप लोग वर्ड को आप लोग समझ लीजिए, स्ट्रेटेजिक फिजिबिलिटी अलाइनमेंट, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। फिजिबिलिटी अलग चीजें हैं, अलाइनमेंट एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम इन दोनों वर्ड को एक ही जगह पे मर्ज करना चाहे तो वो उस सेंस में फेल हो रहा था, बिकॉज दे वांट कंप्लीट सिक्योरिटी, they don't want to get any type of a human interference or the you can call it infiltration किसी भी मोड में, किसी भी तरीके में, बिकॉज जो पेंटागन है that is in no fly zone। लेकिन उसके बिल्कुल पैरेलल उन लोगों ने वो ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा उसमें इशू क्या हुआ, उसमें इशू ये हुआ कि that was quite comfortable, लेकिन no one would like to pay $12 or more than like $5 to $6 for a 10 to 15 minute drive। हाँ, तो आप उसको एज अ शो पीस इस्तेमाल कर सकते हो, बट यू विल गेट वेरी लिमिटेड पीपल। लेकिन अब वहां पे सफर कौन लोग हो रहे थे? द ब्लॉक which was directly parallel to the पेंटागन, तो जो नेबरहुड था that was basically suffering। अभी एज अ प्लानर, एज अ डिजाइनर, आपके कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट क्यों है? आपके जहन में ये एक चीज होनी चाहिए कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो हो, आपके डिजाइन जो हो, इसमें ये सारे के सारे खसूसियात होने चाहिए। सर ये फास्टर आपने 7 नंबर ये कंजंक्शन में नहीं है, कंजंक्शन में नहीं है? नहीं, वो तो कंजंक्शन रिलीफ तो एक अलग चीज है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट आपका एक सब्जेक्ट है अर्बन एंड सब अर्बन इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के नाम से, उसमें फिर हम लोग बात करेंगे राइट ऑफ वे की। राइट ऑफ वे एक अलग डोमेन है। राइट ऑफ वे कैटेगरी A, B, C, D। इसका आम से अल्फाज में बताने का मकसद ये है कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की मोड जो हो, कोई भी A, B, C, D, ठीक है, उसकी वो जो कैरेक्टरिस्टिक इन द टर्म्स ऑफ जो अप्लाई हुई है वो किस तरह फंक्शन कर रहा है। इज इट कंप्लीटली डिपेंडेंट? इज इट मिक्स विद एनीवन एल्स? इज इट हाइब्रिड मैक्स? इज इट कंप्लीटली मैक्स? तो वो डिफरेंट कैटेगरीज में आता है। So like as a transportation engineer, will it be able to like we cannot depend on mode ना सर, हम तो वो नहीं बना सकते वो, हमने तो सिर्फ रोड और वो डिजाइन है हमारे पास, तो मोड हमारा काम नहीं है ना सर, तो फास्ट फिर कैसे आ जाता है? ठीक है, अच्छा लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दैट वन, ओके। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक में आपका एक लास्ट में आएगा सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जो आपकी मोड होगी दैट शुड कंप्लीट और फुलफिल द डिमांड ऑफ द करंट जनरेशन एज वेल एज विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द फ्यूचर। ठीक है, तो आपके जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज, अब फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उन सबको लगा दूं। जिस तरह हम लोग यूजुअली घर का जिस तरह हम लोग राशन चलाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक दफा जिस तरह हम लोग सारे के सारे एवरेज बैकग्राउंड के जितने लोग हैं, तो जब एक दिन कोई मुर्गी खा लेते तो 2-3 दिन फिर लोग यूजुअली दाल वगैरह खाते हैं। तो दैट डजंट मीन कि आप एक ही पेस आपने पकड़नी है और उसी पे फिर आपने जानी है। तो जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो एज ए इंजीनियर आपके जहन में ये 8 से 9 खसूसियात होने चाहिए कि आपकी फिजिबिलिटी, आपकी प्लानिंग, आपके इनपुट, हर एक जगह पे आप डिजाइन नहीं करोगे, हर एक जगह पे आप प्लानिंग नहीं करोगे, हर एक जगह पे आप फिजिबिलिटी नहीं करोगे, लेकिन
जो सिस्टम कर रहा है, जो आपके इनपुट आएंगे, उसमें इस तरह की खसूसियात हो, या जो आपके जो थॉट हो, या फॉर एग्जांपल सजेशन हो, दिट शुड टारगेट दोज 8 कैरेक्टरिस्टिक। अगर ये 8 ओवरऑल नहीं हो रहे तो फिर आप कहीं पे लेक कर रहे हैं। आपका सवाल था मोड के बारे में। Now we are talking about the transportation engineering system. We are not talking about any particular mode, road, rail, doesn't matter. Yes. जब भी हम मल्टी मोडल की बात करेंगे, जिस तरह आप लोगों को ओरिएंटेशन के सेशन में भी मैंने एक इंसिडेंट बताया था कि जब सब कॉन्टिनेंट स्प्लिट हो गया, when the British leave, तो इंडिया के साथ हमारे 7 मर्जिंग पॉइंट्स थे। उस टाइम में दे वर कंप्लीटली फंक्शनल, लेकिन जब वो चले गए तो हम अपनी अना को ले आए और वो सारे मर्जिंग पॉइंट आपके बंद गए। पूरी यूरोप में 21 से 22 ममालिक में दे डोंट बिलीव ऑन द बॉर्डर सिस्टम। आपस में आप कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पर भी आप ट्रेड कर सकते हो। अभी आपको आएगा आगे रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ये चीज आप रोल में आप लोग समझ लोगे कि रोल क्या है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का रोल क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा। अच्छा, जो स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पे ऑनलाइन है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों ने अक्सर सुना है कि रोड, रेल, एयरलाइन और पोर्ट्स, हार्बर, पाइपलाइंस, बैराज, रिवर, ओपन स्ट्रीम, क्लोज स्ट्रीम वगैरह वगैरह, ये सारे आ जाते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने सुना है या कभी आप लोगों ने कभी गौर किया है, जब हम बात करें अच्छा, अगर हम बात करें दो चीजों के बारे में, अगर हम मोड्स की बात करेंगे तो मोड्स में आपको कुछ फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक समझने चाहिए कि हम जिस पर्टिकुलर मोड की बात करेंगे, अगर इसको हम एक एक्स वाई के डायरेक्शन पे लेकर आना चाहे, अगर हम ये देखना चाहे फॉर एग्जांपल कि कराची से पेशावर एक कंटेनर जा रहा है, कराची से पेशावर एक कंटेनर है। आई एम नॉट सेइंग कि कौन सा मोड है। कंटेनर थ्रू रोड भी जा सकता है, थ्रू शिप भी जा सकता है, थ्रू रेल भी जा सकता है, थ्रू एयर भी जा सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अगर हम कास्ट और डिस्टेंस के बारे में मुआवजा करना चाहे, कास्ट और डिस्टेंस के बारे में, ये बंद नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे लिख देता तो ताकि हमें जस्ट ये आइडिया हो जाए कि कौन सा सबसे ज्यादा होगा। तो आप लोगों को पता है कि किसकी कास्ट सबसे कम आएगी? इज देयर एनीवन? क्वेश्चन ये है, एक कंटेनर जा रहा है, वी आर नॉट सेइंग कौन से मोड से जा रहा है, या एक बल्क जा रहा है, आइटम, वेट, और वो जा रहा है फ्रॉम फॉर ए वेरी लार्जर डिस्टेंस। तो आपने यहाँ पे अब ये चीज पढ़ी है, आपने यहां से इसको उठाना है, ये प्रोड्यूसर से सप्लायर तक इसको आपने लेकर आना है, ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक। तो आपने ओवरऑल इसको देखना है कि यहां से यहां तक इसकी कास्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस किसकी बढ़ेगी, किसकी कम होगी। कुछ आएगा है आप लोग? शिपिंग करते हैं हम पोर्ट्स, जिस तरह से चाइना हमारे पास सब कुछ जितना भी ये सिस्टम ट्रांसफर करता है थ्रू पोर्ट्स। वेरी गुड, ठीक है सर। नाउअडेज ये सी पैक बना रहे हैं। ठीक है, क्यों? पोर्ट्स में उनको एक लॉन्ग रूट तय कर कराना पड़ता है जो कि उनके बिलियंस ऑफ कॉस्ट लग जाते हैं। वेरी गुड, और along with time, along with time, good, very good। और जैसे कि अभी रिसेंट है कि
lost the connection. I hope that now things are getting fixed. Okay. I hope कि आप लोगों को स्क्रीन भी अभी दिखाई दे रही है. All right. यार ये अनइंटरप्टेड सप्लाई का एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में. यस मतलब बैकअप होना चाहिए. असल में ये बड़े बड़े महंगे स्मार्ट बोर्ड है और ये पूरे पाकिस्तान में कहीं पे इंस्टॉल नहीं है, कहीं पे भी नहीं है ना. ये बड़े स्मार्ट है. बस सब ये है कि इंटरप्शन ऑफ सप्लाई सर उड़ा भी सकती है. अनइंटरप्शन ना, क्योंकि वो किसी भी टाइम में जा सकती है. जरा सर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हुई, वोल्टेज अप एंड डाउन हुई तो अच्छा ठीक है. तो हम लास्ट के बारे में जस्ट एक कुछ कमेंट आप लोग सुन लीजिए कि जब हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो एज अ प्लानर, एज अ इंजीनियर, अगर आपको ये टास्क दिया जाए कि आप यहां से यहां तक इसको कनेक्ट कर दो, लेकिन बट फाइनेंशियली वायबल. पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है, जितनी भी प्लानर्स है, जितनी भी डिसीजन मेकर है, दे डोंट केयर अबाउट कि हमारे अवेलेबल रिसोर्सेस कितने हैं, ये प्रोजेक्ट कहां से कंप्लीट होगा, कौन इसकी पेमेंट करेगा, बिकॉज और होल सिस्टम फ्रॉम द 76 ईयर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द डोनर्स. ठीक है ना. तो वो कहते हैं ना कि हर एक उसके इतने ज्यादा डाउनग्रेडेड की भी एक फुल स्टॉप होना चाहिए. तो आई थिंक एज ए इंजीनियर, एज अ एडवांस लर्नर, आई थिंक दिस वाज मोर देन एनफ दैट वी हैव देयर सो फार. अभी हमें थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करने चाहिए. तो जब हम मोड्स की बात करेंगे और आपसे कोई पूछ ले कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी को कनेक्ट करना है और आपके साथ ये 3 से 4 अवेलेबल मोड हैं और इसके अंदर कंस्ट्रेंट ये है, आप यहाँ पे लिमिटेड हो और इसके बाद आपके साथ अवेलेबल रिसोर्सेज ये है, अब इसमें अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दिखाओ. I would tell you a very important story. आप लोगों के साथ मैं वो डॉक्यूमेंट्री भी शेयर कर दूंगा. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ रेलवे इन ईरान एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो पूरी दुनिया पर पूरी दुनिया ने उन पर सैंक्शंस लगा दिए. हाउ दे कम अप, उन लोगों ने किस तरह अपने मैकेनिकल अपने कैपेसिटी को बढ़ा दिया, किस तरह दे हैव कॉप्ड द वेरी मच एडवांस सॉल्यूशन, किस तरह हाउ दे कंप्लीट और फुलफिल जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थे, और किस तरह उन लोगों ने बना दिए वो सारी चीजें कि जो पूरी दुनिया से वो चीजें पहले ईरान के अंदर इंपोर्ट होके आती थी तैयार. तो वो किस तरह, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था. और आजकल ईरान की जो रेलवे सिस्टम है अपने एक अंदाज में एक बहुत ज्यादा यूनिक प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि पर्सनली मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ. तो कभी भी एज अ प्लानर आपको चॉइस दिया जाए कि विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वुड यू प्रपोज. मैं 2015 में when I was doing a job as a transportation engineer in local government, तो वहां के इंटरव्यू में मुझसे एक सवाल किया गया कि do you have any solution how we can resolve the traffic issues in Peshawar. तो उनसे मैंने कहा कि no, I don't have any solution. मैंने कहा do you have, तो उनसे फिर मैंने पूछा कि क्या आप लोगों के साथ कोई सोल्यूशन है, तो वो कहने लगे कि yes we are thinking about a smart rapid transit BRT. अब वो तो सारे के सारे सिटी थे. तो उनसे मैंने एक सवाल किया कि ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग BRT बनाएं, जहाज आप लोग बनाएं, अच्छी बात है, बट हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन द लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ पेशावर इन द लास्ट 1 year. अब वो तो सेक्रेटरी थे, 21 22 ग्रेड वाले थे, उनके लिए तो ये बात इक्वल टू गाली थी. तो उन्होंने कहा नहीं,
फिर मैंने कहा इन द लास्ट 3 ईयर, उसने कहा नहीं, मैंने कहा इन द लास्ट 5 ईयर, उसने कहा नहीं। जब मुझे लगा कि उनकी नॉलेज मुझसे थोड़ी सी कम है, फिर उनको मैंने कहा कि सर डोंट माइंड, देन हाउ द हेल यू कैन कम अप विद सजेशन। लेकिन अल्लाह उनके साथ अच्छा करे, फिर लोगों ने मुझे लिया भी था, लेकिन मैं उनके साथ चला नहीं ना। तो बात यह है कि जो हमारे डिसीजन मेकर्स है वो लोग हैं जिनको कोई भी आइडिया नहीं है कि हमें करना क्या है। वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं थे। मैंने एक कॉलम लिखा था, उसमें मैंने एक वर्ड यूज की थी कि वी नेवर मेड अ प्लान फॉर द पीपल। आप लोग वर्ड्स की तरफ आप लोग थोड़ा सा आप लोग सोच लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं। वी नेवर मेड अ प्लान फॉर द पीपल, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द पीपल टू यूज आवर प्लान फॉर द पीपल ऑफ एवरी क्लास। ठीक है, नहीं क्लास एक अलग चीज है। असल में जब भी हम लोग प्लानिंग्स की बात करते हैं या जब हम इस तरह की चीजों की बात करते हैं, तो इट इज बेसिकली इट शुड बी अ डिसीजन फ्रॉम अ प्लानर्स, नॉट फ्रॉम इंडिविजुअल प्लानर्स। ये बीआरटी का जो आपने बोला है, पॉइंट समझ रहे हो ना? बीआरटी पे मैंने एक कॉलम लिखा था, आप लोग सर्च कर ले, सारे के सारे आप अपने सेल फोन आप लोग ओपन कर ले, बीआरटी अ प्रोजेक्ट ऑफ अ डे और मोर, सर्च कर ले मेरे नाम के साथ, बाय डॉक्टर आसिम फारूक। गुलबुद्दीन आवाज आ रही है कि नहीं? मैडम आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है सर, इट्स क्लियर। वालेकुम सलाम। ठीक है। बस आई वुड जस्ट लाइक टू सी के कौन कौन हमारे साथ एक्टिव है। तो खैर है, अगर आप लोग को कोई इस टाइम में कोशिश करे कि जो सेशन होगा हमारा फिजिकल, इट विल बी नॉट मोर देन 1 आवर, लेकिन उसमें जब मैं जो चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोग कॉपी करते जाए, ठीक है ना? खैर है, आप इसको आप थोड़ा सा बाद में पढ़ ले। बीआरटी अ प्रोजेक्ट ऑफ अ डे और मोर बाय डॉक्टर आसिम फारूक, आ गया? तो आप लोग खैर इसको फिर थोड़ा सा बाद में पढ़ ले कि कहां पे हम लोगों से गलतियां हो गई, कहां पे हम लोग चूक गए, ठीक है ना? या कौन इस तरह के कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से प्रोजेक्ट फेल हो गया। एंड व्हाई आई एम रेफरिंग टुवर्ड वर्ड, अ वेरी हार्ड वर्ड्स, अ प्रोजेक्ट ऑफ अ डे और मोर। जो मेरा अपना वो था ना, जो सेक्रेटरी था जुबैर कुरैशी, उसकी फिर इस कॉलम के बाद फिर मुझे एक कॉल भी आई थी, वो कह रहे थे कि सर आप हमें छोड़ नहीं रहे। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो बस अपने मौक़िफ़ का इजहार कर रहा हूं। टाइटल बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, जब आपको डिसीजन दिया जाए कि कौन से मोड में आपने इस बल्ब को लेके जाना है, तो आपने कंस्ट्रेंट को देखना है। अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना चाहे इन टर्म्स ऑफ अ कास्ट विद द डिस्टेंस, तो आप मुझे बताइए हसन, आपके ख्याल में सबसे इकोनॉमिकल मोड कौन सा होगा? Again, before, do not jump to the conclusion too fast. पहले थोड़ा सा आप सोच ले कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। सर इंटरसिटी, इंटर कंट्री, आउट ऑफ कंट्री? नहीं, within the country, within the country. It can be out of the box too. Like I can suggest. When we talk about the modes, we are talking about the modes. We are not talking about the very particular. You can say anything, लेकिन आपने फिर अपने जवाब को कास्ट और डिस्टेंस के ज़मरे में आपने उसको डिफेंड करना है। अली, आप भी थोड़ा सोचो। हाँ बताइए। सर हम बेसिकली अगर हाईवेज को देखें, हाईवेज हमारे पास एक बेस्ट रूट है किसी भी चीज को सप्लाई करने के लिए। जिस तरह यहाँ से कराची से लेकर तो चाइना बॉर्डर तक हर चीज सप्लाई थ्रू रोड हो रही है। ठीक है। अगर अभी हम देख लेंगे गिलगित से हम जहाज उड़ाते हैं कराची का, तो उस पर भी हमारी कॉस्ट आएगी। ठीक है। उसके लिए हमें बस हैवी जेट चाहिए होगा, एयरप्लेन जो हमारे पास मोड को ट्रांसफर कर सके। उस टाइम पे हम देखेंगे कोई हमारे पास वाटर पाइपलाइन सिस्टम है कि जिसके थ्रू हम अपना सामान चैनल भेज सकें कि नहीं। अब वो हमारे पास तो है नहीं, तो इसलिए तो वो कैंसल आउट हो गया। हाईवेज हमारे पास बेस्ट रूट है, क्यों? ऑलरेडी उससे चेंजिंग इंटरचेंज हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई आपस में काउंटर हो रही है। तो हाईवेज हमारे पास बेस्ट सिस्टम है, क्यों? ऑलरेडी हो रहा है। क्यों? जब हम एयरपोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो वो हमारे पास कॉस्ट और इंक्रीज हो जाएगी।
हाईवेज के निस्बत कि हमारे पास कॉस्ट में इंक्रीमेंट ज्यादा हो जाएगा, बट टाइम कम लगेगा, बट हमारे पास कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी उसकी। What about railway? You are forgetting very important. Sir, I was suggesting the same, sir. Like इसके लिए नहीं, आप गुड है, आपकी एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। रेलवे सिस्टम हाँ। हमारे पास सिर्फ हवेलियां तक है, हाँ ठीक है। हवेलियां से पिंडी, पिंडी से कराची। हमारे फिर ये कि हमारा सामान आएगा गिलगित से हवेलियां थ्रू हाईवे, फिर आगे हवेलियां से ट्रांसपोर्ट होगी कराची तक। सर इसलिए मैंने पूछा कि आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हैं, क्योंकि मुझे भी भाई की फैक्ट्स पता थे, लेकिन अगर हम रेलवे की बात करें ना सर, तो you should बेस्ट रहेगा। you should provide like kind of your own assumption, Yes, sir. your own thoughts. You should not refer to us. Sir, my suggestion is railway, sir. Like उसके लिए अलग है, जैसे हमारे पास सीट इन्होंने की है, वो भी कॉस्ट और डिस्टेंस को। अच्छा, is there any online participant who would like to contribute? अगर हम modes of transportation को XYZ में ड्रा में उसको चार्ट में अगर हम ड्रा करना चाहे, तो which mode you guys will refer and why? दो चीजें हैं, एक कास्ट है और दूसरा डिस्टेंस है, दो पैरामीटर्स है। सर रेलवे ज्यादा ठीक रहेगा अगर उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बंदा करे तो एक साथ में बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो सकता है। Is there anyone else? Anyone else in the online participant? Yes sir. Yes sir, I was also going to go with railway. रेलवे, अच्छा एक चीज आप लोग समझ लें, हमारे साथ जो बॉटम पे रहेगा, which we will call the most economical या most feasible, that will be the pipeline. कौन सा होगा? पाइपलाइन कम्यूट जो हमारा होगा। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आप लोग थोड़ा सा सर्च आउट कर ले, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ अब हम डाउन से अप की तरफ जा रहे हैं। खैर इसकी आप लोग के साथ, ये हसन आप लोग के साथ पिक्चर भी शेयर कर लेगा, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट सेकंड लेवल पे हमारे साथ आ जाएगा बैराज, जो स्ट्रीम्स है हमारे, ठीक है ना, स्ट्रीम्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है। एयर फिर इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद हमारी रोड होगी, तो लास्ट में है हमारे साथ वो है हमारा रेलवे। थोड़ा सा आप ये पिक्चर शेयर कर लें ताकि इनको जब दिखाई दे, ये वाले, ताकि फिर हम लोग आगे फर्दर इस पे बात कर लें। अच्छा, ये पिक्चर जो है अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग के साथ शेयर हो रही है, जस्ट आप थोड़ा सा इसको आप लोग देख लें, ताकि फिर मैं चीजों को थोड़ा सा कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर लूं, ताकि मैं जो कहना चाहता हूं वो आप लोगों तक पहुंच जाए। और आप लोगों से एक दफा फिर से भी मैं कह रहा हूं कि यू शुड नॉट ऑलवेज एग्री विद मी, ठीक है ना। इस सेशन से मैं बेसिकली चाहता ये हूं दैट यू गाइस शुड कम विद ए आर्गुमेंटल सजेशन, ताकि वो वन वे कम्युनिकेशन बिल्कुल ना हो, ठीक है ना, ताकि कुछ आप लोगों से मैं सीख लूं, जो कुछ मुझे आता है वो आप लोगों तक मैं डिलीवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो इट शुड नॉट बी ए कंप्लीटली वन वे कम्युनिकेशन। अच्छा, अगर ये व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों के साथ ये पिक्चर शेयर की गई है, यहां पर आप लोग थोड़ा सा देख ले, एयर का, रोड का और रेल का टॉप में जो कास्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और फिर वो इन टर्म्स ऑफ अ डिस्टेंस इट इज अगेन लीडिंग टुवर्ड्स इकोनॉमिकल मोड, लेकिन टॉप में वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम है। व्हाई I'm saying about this specific critical portion. बताइए, अभी बताइए ना, ये तो आप बताइए। कॉस्ट इंक्रीज हो गया है सर। क्यों? क्योंकि सर जिस टाइम कॉस्ट फ्यूल Eliminate the word fuel, इसको निकाल दें। थोड़ा सा आप लोग क्रिटिकली सोच लें कि इनिशियल में हमारे साथ कास्ट क्यों बढ़ रही है। लग्जरी आती है ना सर इधर, और कोई अवेलेबिलिटी लाइक हमारे पास, थोड़ा सा सोच लीजिए,
इज देयर एनीवन, अगर आप लोगों तक ये पिक्चर पहुंच गया है तो जो ये टॉप में कास्ट जहां पे है C डिवाइडेड बाय पर किलोमीटर, यहाँ पे हमारे ये 3 मोड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या कोई बता सकता है कि ये 3 मोड्स यहाँ पे कास्ट मैक्सिमम क्यों है? एनीवन? Sir, due to- जी जी बताइए बताइए प्लीज, बताइए सर प्लीज। Sir, due to time, it will take less time. अच्छा लेस टाइम। हाँ सर मतलब जो हमारे पास स्ट्रीम्स और पाइपलाइन है ना सर, अगर हम उसको देखते हैं वो हमारे पास एक नेचुरल ऑलरेडी अवेलेबल होता है, और अगर हम एयर और रेलवे और रोड की बात करें तो उस पे कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा लगता है। अच्छा, ये जो पोर्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है कास्ट में, जहां पे रोड, एयर और रेलवे है, ये मैक्सिमम क्यों है? बिकॉज ऑफ 2 थिंग। नंबर 1 which we called the handling, the second we called the time lag, LEG। आप लोग खैर बाद में थोड़ा सा आप लोग सर्च भी कर ले। नंबर 1 है हमारी हैंडलिंग कॉस्ट, नंबर 2 है हमारी लेग कॉस्ट। बेराज तो ऑलरेडी वो होता है, फिर बाकी की हैंडलिंग जरूरी होती है। ठीक है। नहीं, हैंडलिंग डजंट मीन कि हम हैंडल कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रेन, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी बिग कन्वेयर बेल्ट, जहां पे आपने एक दिन में 800 कंटेनर को उठाना है। 800 आ रही है, 800 आपने लेके जानी है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ वेरी पर्टिकुलर बॉक्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए एनवेलप। अब बॉक्स को आप डिजाइन कर रहे हो, पूरी कंट्री की गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो विद इन अ सिंगल डे में। Could you imagine the capacity of China, that how much containers they are handling in a single day? Over 6,000 container. ये मेरे ख्याल में ये अब भी कम है, according to their population, according to their demand. एक दफा मैं एक प्रोफेसर के साथ बात कर रहा था, उसको मैंने कहा कि सर you guys are doing a very terrific things, very incredible. उसने कहा no. उसने कहा that we are still far away from the development. We are still trying to feed our people. Still trying to feed our people. ये 2 अलग चीजें हैं, ठीक है ना? चलो इसके बारे में फिर कभी किसी दिन बाद में बात करेंगे। पहला एलिमेंट है हमारा हैंडलिंग। जब हैंडलिंग की हम लोग बात करेंगे तो आप इमेजिन कर ले कि 800 कंटेनर या 1000 कंटेनर आप या इंपोर्ट के टर्म्स में आ रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट के टर्म्स में आ रहे हैं। बट एज अ हैंडलर आपका जो पोर्ट है that should be empty after 24/7. अब वो आप किस तरह मैनेज कर रहे हो, किस तरह आप मतलब आपकी ट्रांसपोर्टेशन की मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन की अरेंजमेंट है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारा हर एक चीज जो है वो बाहर से आ रहा है, कंट्री से, आउट ऑफ द कंट्री से बहुत कम चीजें जा रही है। जो आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के बारे में, उसमें आप लोगों को मैं इंशाल्लाह एक ग्रैंड प्रोजेक्ट दूंगा आप लोग के फाइनल टर्म में, सेकंड सेमेस्टर में, जिसमें मैं ये चाहूंगा कि हर एक पार्टिसिपेंट क्रिटिकली एनालाइज कर ले कि कौन कौन से वो मर्जिंग पॉइंट्स होने चाहिए इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ। और फिर इंशाल्लाह उस सेमेस्टर में मैं आप लोगों के लिए कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स होंगे, वो उसका भी एक मैंने अपने जहन में थोड़ा सा सोचा हुआ है। तो 1-2 आप लोगों के वो कोर्सेज भी है, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ताकि उनके जरिए फिर आप लोग एनालिसिस कर लो। हर एक बंदा, जितनी भी पार्टिसिपेंट है, एक तो ये है कि आप लोगों का विद इन डिग्री में आप लोगों का एक बहुत बड़ा एक रिसर्च डायरेक्शन भी आ जाएगा थोड़ा सा, और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन से डायरेक्शन में जाना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे साथ लेग कास्ट, इसको हम लोग कहेंगे टाइम लैग। अब टाइम लैग क्या है? टाइम लैग वो इसका मतलब ये है कि जब एक कंटेनर को आप उठा देते हो या फिर साइड में कर देते हो, वो कंटेनर जितना टाइम लूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है थ्रू रेलवे आपकी कराची से पेशावर 24 घंटे की,
लेकिन आपकी हैंडलिंग कास्ट की वजह से या लेक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से या आपकी लिमिटेड मशीनरी की वजह से वो कंटेनर आपका पहुंच रहा है 48 घंटे में, बजाय के अच्छा रियल कम्यूट टाइम है 24 आवर। 24 आवर जो आपका मतलब एक कंटेनर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर तीसरा, या मतलब ये इस रो को हम लोग पहले खाली कर रहे हैं, इसको फिर बाद में कर रहे हैं, लेकिन वो कंटेनर तो आपका इंतजार कर रहा है ना, that specific container is losing its time. That will be called time. क्लियर हो गया? यस सर। दो चीजें हैं बड़ी जरूरी, अगर आप इनको ऑटोमाइज करो और ये आप इनको इस तरह की डिजाइन कर लो, और फिर मोर इंपॉर्टेंटली अगर आपका मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इतना इफेक्टिव है that it can cope, it can address, it can provide you the very best route within the time, तो फिर बेस्ट है। उसके लिए जिस तरह आपको मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी, यहां से मैंने रब कर दी कि इफ यू वुड लाइक टू गो फ्रॉम ए टू बी, वहां तक कोई डायरेक्ट कोई सर्विस नहीं है, तो यू आर टू गोइंग फर्स्ट थ्रू बीआरटी, उसके बाद फिर आपका अंडरग्राउंड मेट्रो आ गई, उसके बाद फिर आपका स्नेलबांग वो काइंड ऑफ हाई स्पीड सर्विस आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि क्या आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो सकते हो अपनी ही ट्रांसपोर्टेशन पे? मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूंगा। जब मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख जर्मनी में पढ़ रहा था, तो हॉस्टल से यूनिवर्सिटी तक हमें ऑलमोस्ट 17 से 18 मिनट लगते थे, ठीक है। तो हम लोग यूजुअली घर से निकलते थे 7:30 बजे, क्लासेस शुरू होती थी 8 बजे, ठीक है। उनका वो रेगुलर एक स्केड्यूल है, सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे, ये उनका वो सेशन था। गवर्नमेंटल है सर, ये प्राइवेट है? प्राइवेट है गवर्नमेंटल है? नहीं, वहां पे तो प्राइवेट है नहीं, जर्मनी में तो हर एक चीज स्टेट होना है। जर्मनी में तो ये नहीं है, वो आप शायद इंग्लैंड की बात कर रहे हो, इंग्लैंड में पॉसिबल है। जर्मनी में तो एजुकेशन भी फ्री है ना मैक्सिमम, आपको जस्ट एक सर्विस चार्जेस देने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ 500 to 600 यूरो फॉर वन सेमेस्टर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्योंकि वहां पे मतलब कंट्रीज वाइज एक या दो सीट्स होती है ना, रिजर्व सीट होती है, तो आप फिर किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम में उसी मुल्क से उससे ज्यादा लोग नहीं जा सकते, ठीक है। तो हम लोग, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन रिलायबिलिटी पे, ठीक है। तो हम लोग जब घर से निकलते थे तो यूनिवर्सिटी क्लास में हम लोग 3 से लेकर 5 मिनट पहले पहुंच जाते, 3 से लेकर 5 मिनट, वो स्केड्यूलिंग उसकी इस तरह होती थी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल इफ आई एम ट्राइंग टू पुश यू दैट यू शुड नॉट यूज योर ओन प्राइवेट कार, यू शुड यूज माय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो किस तरह पॉसिबल है? अगर मेरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस तरह डिजाइन है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और अट्रैक्ट कब करेगा? इफ यू कैन रिलाई ऑन माय प्लानिंग, ऑन माय डिजाइन। वो कब करेगा? when you can complete your ride from A to B within जो आपका टाइम। तो ये देखो 3 फेजेस आपस में कनेक्ट होके एक ही आपका मोड बन जाए। आज सुबह ये हमारे साथ एक स्टूडेंट है मिस्टर हसन, ये स्वाद से आ रहे थे, तो ही वाज आस्किंग कि क्या स्वाद से यहाँ तक कोई डायरेक्ट मोड है? ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर ये मोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड की बात करते हैं तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट प्रोवाइडेड आ जाते हैं और एक प्राइवेट आ जाता है। ये बेसिकली हमारी बदकिस्मती होती है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड कम होती है। लेकिन जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड होती है वो भी काम नहीं कर रही होती, उनका भी अल्लाह ही हाफिज होता है, ठीक है ना, इज वेरी फैक्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो यू इवन कैन नॉट लाई। गवर्नमेंट का अगर मोड बेस्ट होता तो हमें प्राइवेट की जरूरत ही ना पड़ती। एग्जैक्टली, टोटली एग्री। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स, अच्छा क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट के इस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को फिर हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट सेशन में हम लोग वो डिटेल से बात कर ले। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा जस्ट एक लास्ट स्लाइड की तरफ लेके जा रहा हूँ, जो है कि ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग क्या है। ठीक है, आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सीख लिया, ट्रांसपोर्ट सीख लिया,
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग सीख लिया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आप लोगों ने आज कॉप कर दिया, फंक्शन आप लोगों ने सीख लिए, कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों ने सीख लिए, और आज एक लास्ट चीज है ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के बारे में। अच्छा, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो इज देयर एनीवन, मेरे ख्याल में यहाँ पे जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आउट ऑफ 8 स्टूडेंट्स में 5 सिविल इंजीनियर उनकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है और वो अपनी फॉर्म चलाते हैं, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है जब आप लोग कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करते हो तो आप लोग प्लानिंग से हमारा मुराद क्या होता है? एनीवन? Yeah, if you want me to make it more precise, so I would like to ask, what is transportation planning and planner? Yeah, what is? सर फर्स्ट जो है हमारे पास सस्टेनेबिलिटी फैक्टर जो हम देखेंगे वो सस्टेनेबिलिटी होगी। सर जी बताइए प्लीज। सर अगर कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखा जाए तो सर जी हम इन टाइम कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट के लिए हम प्लानिंग करते हैं कि इस तरह सिस्टमेटिक तरीके से एग्जीक्यूशन हो कि हर काम जो पैरेलल एक्टिविटीज हो सकती हैं वो पैरेलल हों और जो एक दूसरे की रिक्विजिट रहती है कि वो एक वन आफ्टर अनदर हो जाए। सर इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरीके से वो एग्जीक्यूट हो जाए। सर हमारा प्लान हमारे टारगेट की तरफ भी होना चाहिए कि हम जो मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जो हमारा एम है ये हम एक प्रॉपर इकोनॉमिकल वो भी देखेंगे ना सर कि हम जो जिस चीज के लिए जो हमारा मकसद है वो इससे पूरा हो रहा है यानी टाइम पे पूरा हो रहा है यानी। Good. और कोई anyone else? Ali, would you like to? Execution of a project, sir. Execution of project. You are referring toward the completion. Completion. Or you are trying to say कि जब हमारे साथ एक प्रोजेक्ट बन जाता है पेपर पे, how you are going to transparent it from the or deliver it from the paper to the ground. और कोई anyone else? अच्छा ये जी बताइए प्लीज। एनीवन? अच्छा ठीक है। अब अगर मुझसे कोई पूछ लेना कि ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में और प्लानर में क्या फर्क है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी प्रोजेक्ट आप करें किसी भी, चाहे वो आपकी जिंदगी का एक नॉर्मल स्केड्यूल हो। अब फॉर एग्जांपल यू गाइस आर हियर फॉर द मास्टर डिग्री। अब यहाँ पे इसको आप एलिमिनेट कर ले, डिफाइन कर ले in terms of vision and mission. One is vision, one is mission. So how we define vision? Go for a future. Dodge. What happens in the future? Vision means when you are planning for the tomorrow. Tomorrow. For the future. For the future. But also. exactly. But when we talk about the mission, mission is basically a regular struggle. A regular struggle in the way, in the same hard way through which you want to achieve your vision. Right? Clear हो गया ना? Vision और mission. तो किसी भी प्रोजेक्ट का एक विजन और मिशन होना चाहिए. Vision is something for the vision, like to achieve that vision. Vision cannot be achieved without mission. Mission cannot function without vision. It's more like मैं जब यहाँ पे आ रहा था 2 साल पहले तो मुझसे सिलेक्शन बोर्ड में एक सवाल किया गया, बड़ा अच्छा सवाल था. कुछ चीजें मुझे बड़ी वो रिलीजियसली याद होती है जिनसे मैं सीखता हूँ. ठीक है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि फिर स्टूडेंट के साथ बंदा शेयर कर ले. तो मुझसे सवाल पूछा गया कि वो एक रिटायर्ड वो थे सिविल सर्वेंट थे, तो वो पूछ रहे थे कि बेटा सारी बातें तो ठीक है, बट आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि इस टूटी फूटी रेल और रोड के साथ और इस टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम किस तरह compete कर सकते हैं विद द डेवलप्ड कंट्रीज. तो फिर मेरा ये सवाल था कि सर, if you are asking for a single line answer, for a single word answer, so that is completely impossible. But if you are talking in terms of the how the same issues will work or how we can plan for the future, तो सर फिर ये है हम लोग एक स्टेट का एक विजन होना चाहिए,
उसके नीचे फिर आपका मिशन होना चाहिए, उसके नीचे फिर आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए। उसके बाद यू हैव टू डिफाइन KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि यहां से वहां तक मैं जाना चाहता हूं। इफ आई एम सिजलिंग within a single point, I will never reach over there. Sorry, just first line. और दूसरी बात ये कि हम लोग जिस तरह हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पहले बात कर रहे थे ना, कि फॉर द पर्पस टू अकम्प्लिश द मूवमेंट, अगर आपकी किसी भी डायरेक्शन में एक मूवमेंट नहीं आ रही, दैट मींस यू आर नॉट मूविंग। Either again, if you are moving, you are not moving in the right direction. तो किसी भी प्रोजेक्ट का एक विजन और मिशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी एक सिटी में म्युनिसिपल सर्विसेज देना चाहते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? क्या आपने सिर्फ इस कचरे को उठाना है फॉर द टाइम बिंग? मैं वासा में काम कर रहा था, लाहौर में, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी विच वाज ओन्ड एंड kindly privately found by Al-Barka, by the Turkish company, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, लाहौर में। तो जब हम लोग वहां के मेन रूम में चले गए, तो फर्स्ट टाइम मैंने इंजीनियरिंग उस टाइम में की थी, तो फर्स्ट टाइम मुझे आइडिया हो गया कि व्हाट इज विजन एंड मिशन। तो उन लोगों ने बड़ा बेहतरीन क्लियरली डिफाइन किया था कि हमारा विजन ये है कि लाहौर साफ, और उसी विजन को अचीव करने के लिए हम रेगुलर बेस पे या क्वार्टरली या फॉर एग्जांपल बाय क्वार्टरली हम लोग प्लान करते हैं कि हाउ वी कैन कलेक्ट द गार्बेज इन मोस्ट एफिशिएंट वे। तो एज अ प्लानर आप लोग हमेशा के लिए, अब यहाँ पे आप लोगों को मैं आपकी एक एग्जांपल दे रहा था, यू गाइस आर हियर फॉर अ मास्टर डिग्री, लेकिन आपका विजन क्या है? टू बिल्ड योर फ्यूचर, to contribute through your presence within the country economy, to provide your productive way जिससे आप बिल्ड कर सकें नेशन को। ठीक है, तो ये आपका एक ग्रैंड विजन होना चाहिए, या होगा या है। और उसके लिए ये छोटे छोटे आपके मिशंस आते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास्टर डिग्री, in terms of short courses, in terms of to participate in some kind of event or conference or something else, jahan pe you would like to meet up with the people to pitch your own idea. Inshallah next जो हमारा सेशन है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उसमें हम लोग फिर मजीद इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे साथ कि हम किस तरह डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं इन्फ्लुएंसेस को, इम्पैक्ट को, इफेक्ट्स को। इसकी आप लोगों को मैं एग्जांपल दूंगा। एक अर्बन प्लानिंग का एक कंसेप्ट है, हम लोगों ने एक नई स्ट्रेटेजी डेवलप की थी, लेकिन बैड लक की वजह से कुछ पब्लिशर ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह आप लोग के आने से कि मैं सोच रहा हूँ कि एक दफा फिर से काम कर लूँ। वैसे मेरे साथ 7 से 8 प्रोजेक्ट तैयार है, बस आई एम लुकिंग फॉर अ पोटेंशियल कैंडिडेट जो उस पर थोड़ा सा अपना काम शुरू कर ले और इनपुट दे दे। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें 2 चीजों को हम लोग लेकर आ रहे हैं, एक है इन्फ्लुएंस का, एक है इम्पैक्ट का। ये एक बहुत बड़ा बेसन टाइप का आपका नेबरहुड है, राइट? इस प्लानर आपने एक चीज प्लान कर दी कि आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में आप फॉर एग्जांपल मिला रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग की वजह से इस तरह की कुछ रूट आ गया। पहले ये एक बेसन था, नेबरहुड बेसन था, अब आपने उस बेसन को डिवाइड कर इन 2 डिफरेंट पार्ट्स, राइटली? यस सर। पहले ये लोग आपस में इंटीग्रेट करते थे, अभी ये लोग इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे, या उनके बीच में आपने एक सेपरेशन वे या मोड आपने बना दिया, राइट? यस सर। अब यहाँ पे कौन कौन से इश्यूज आएंगे? Supplies of goods. Think in terms of urban planner, transportation developer. Sir, Have you heard about the separation effects? थोड़ा सा आप लोग सर्च कर, जब भी टाइम हो ना आप लोग सर्च कर ली
separation effects. सर ये काइंडली ये हमारा एक बेसन है, एक बहुत बड़ा, जिसको हम लोग लिविंग नेबरहुड बेसन कहते हैं, जहां पे लोग हमारे रह रहे हैं. You would like to connect that point A, for example, so called, with point B, top and down. अभी आप as a developer, as a engineer, आपने ये suggest कर दिया कि ये मेरे feasibility के मुताबिक 7 से 8 routes में that one is the most economical one. तो ये आपने बना दिया. अभी इफेक्ट क्या आ गए कि इन दोनों लोगों को आपने अलग अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया. पहले they were acting as a one unit. Now both towns, you can call them, are acting as an individual one. अभी इसके अंदर आपने कौन कौन से इश्यूज आपने बना ना आपने बना दिए, ये आपके नए प्रोजेक्ट से बनेंगे. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लानिंग की. नेट फोकस ऑन योर विजन हियर, इस पे आप फोकस करो. ये आपका विजन क्लियर हो गया, एस्टेब्लिश कर दिया आपने. ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो आप, अभी तक आपका बना नहीं है, आप कागज पे बना रहे हो. अगर ये हो गया तो यहाँ पे सेपरेशन इफेक्ट्स कौन कौन से होंगे, डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस क्या होगा. सर मर्जिंग पॉइंट्स पहले तो सर इसमें जो प्राइस होगा ना सर, लैंड होगी. गुड. कि जिन बंदों की जमीनें होंगी वो जमीनें छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते. आया कि अली सर प्लानिंग ये तो देखते अली, हैं ना. no one can beat with the state. No one can beat the state. लोग स्टे ले ले लेना है. You cannot, आपको सरेंडर करना होता है. ठीक, हम लोग ना we will not go to the issues. हम सिर्फ अपने ही प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हम बीआरटी को हम खुद कर रहे हैं, हम लोग लगे हैं ना. ये आपसे एक इनपुट आ गया कि अगर आप पॉइंट ए को बी के साथ मिला रहे हो तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट द सेपरेशन इफेक्ट. क्या people will accept that thing? What about the people's safety? What about the sound effect? What about the कि आप उनके बीच में जा रहे हो? What about the environmental causes and so on? हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी जिसको हम लोग मिरर प्लानिंग कहते हैं. मिरर प्लानिंग, जब भी हम लोग सुबह सवेरे निकलते हैं ना ऑफिस के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, जॉब के लिए या किसी से मिलने के लिए इवन, तो हम लोग अपना आईना देखते हैं कि मैं किस तरह लग रहा हूँ, राइट. और हर एक आदमी, अलेक्जेंडर की मैं एक नावल एक पढ़ रहा था, उसमें यह था कि हर एक आदमी जो है वो अपनी दुनिया का एक बहुत बेहतरीन किरदार है अपने हद तक, उसके सोच करने का. और हर एक आदमी जो है उसकी मिसाल एक एक्टर की है, एक मदारी की है. comes on a stage, play, perform and leave. लाइफ जो है, लाइफ स्टेज है. हम लोग जो है जस्ट एक वन एलिमेंट है, इंडिकेटर. हर एक बंदा अपना एक किरदार है. ठीक है, हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी मिरर प्लानिंग के नाम से 2014 में BMW के लिए, बवेरियन मोटर वर्क्स. आप लोगों ने BMW का नाम सुना है ना? तो B बेसिकली मींस बवेरिया, ठीक है ना. बवेरियन मोटराइट, बवेरिया जो है ये म्यूनिख में, म्यूनिख का ये सेंट्रल कैपिटल है. बवेरियन मोटराइट वर्क्स, मोटर, उसको ऑटोमोबाइल कहते हैं जब उसको आप ट्रांसलेट. अच्छा, हम लोगों ने ये किया था कि जब हम लोग कोई भी काम कर ले तो अपने सामने आईना रखे और वो हमें बता दे कि आपने यहाँ पे जो प्लानिंग की है, क्या वो आपने यहाँ पे भी वो सेम प्लानिंग की है. जो आजकल के पंजाब, जो आजकल फॉर एग्जांपल सफर हो रहा है कि लाहौर डेवलप है, बाकी पंजाब में कुछ है नहीं. तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह की एक स्ट्रेटेजी आ जाए प्लानर्स के लिए, ताकि वो उसमें अपना आईना उनको दिख जाए. आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे कंट्री को इस तरह आप बिल्ड कर लें, बट देयर शुड बी ए विजन. इफ यू आर मूविंग विदाउट अ विजन, हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर स्टीवन क्रिसलिंग, ये बात मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूं, तो उसने हमसे 2010 में पूछा था कि आपके लाइफ का मकसद क्या है. सर इसका मैं भी अक्सर ये it was very hard to define.
हम तो वो तोतों की तरह हम लोगों ने रटा था ना कि आई वुड लाइक टू बिल्ड द कंट्री फलाना एक्सवाइजेड। ऐसे का नो, दोस आर द थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट डू। ऐसे का आपका अपने जिंदगी का मकसद क्या है, वेयर यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू अचीव। सर मैं जब ये पाकिस्तान ये पॉलिटिक्स के बारे में सुनता हूँ, मैं अक्सर कजन्स या दोस्तों को भी पूछता हूँ कि तुम तो ये गिला कर रहे हो कि मुझे पाकिस्तान ने क्या दिया है, तुम्हारी अभी एज 26 साल है और 27 साल है, तुमने आज तक पाकिस्तान को क्या दिया है? गुड, प्रोडक्टिविटी नहीं है। अच्छा ठीक है। असल में हमारे वो कंस्ट्रेंट थोड़े से लिमिटेड है ना, हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती है, हमारे एफिलिएशंस बदल जाते हैं विद पीपल, विद सेक्ट, विद एनवायरनमेंट, विद डिफरेंट तरीके हैं बहुत सारे हमारे। गाइड भी नहीं है सर, और टीचर्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे साथ कि आप किस तरह एसेस कर रहे हो। असेसिंग या एक्सेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कोई भी प्लानिंग इस तरह नहीं है, जो देखो जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि हमारा कोई भी प्लान इस तरह नहीं बनता कि वो लोगों के लिए हो। हम लोग ये चाहते हैं कि ये बस मैंने बना दिया, अब लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपके प्लानिंग के अंदर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मींस आप लोग एक टर्म सर्च कर लिए, घूस्ट टाउन, घूस्ट, GHOST, घूस्ट टाउन। ये यूएस में और चाइना में एक बहुत बड़ा इशू बना था, बड़ी बेहतरीन प्लानिंग हुई थी, हर एक चीज बड़ी वेल फर्निश्ड, कमर्शियल, बट इट डिडंट वर्क। व्हाई? Because there were no opportunities for the people. ये बहुत बड़ा जरूरी है। और चैलेंजेस से क्या मतलब है? चैलेंजेस से मुराद ये है कि क्या वहां पे ऑलरेडी कोई उस तरह की सर्विस है जो ऑलरेडी फंक्शनल है, आप उसको एज अ मोनोपोली माइंडसेट, एज अ काउंट टेकर, एज अ मुकाबले के तौर पर आप उसको किस तरह लेकर आओगे। ये दो चीजें, ये हम प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टिल वी आर देयर, लेकिन ये उसके डोमेन्स में आते हैं, इंडिकेटर्स में आते हैं। और लास्ट वन आपने डिफाइन करना होगा कि व्हाट आर योर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, अपॉर्चुनिटीज, विजन्स, ऑप्शंस। हमेशा के लिए कोई भी प्लानर हो ना, जब भी हमारे घर में मेहमान वगैरह आते हैं ना यूजुअली, तो हम लोग यूजुअली कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर लीडिंग योर फैमिली, तो हम लोग ये कहते हैं कि एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। फिर उन्हीं ऑप्शन में से हम लोग कहते हैं कि यार इसको इन करो, इसको आउट करो वगैरह वगैरह, इस तरह का एक एनवायरनमेंट बन जाता है। तो इंजीनियर शुड प्रोवाइड ए रीजनेबल अल्टरनेटिव ऑप्शन, लेकिन इफ योर लाइफ इज विदाउट विजन, तो ये फिर आपके लिए बड़ी खतरे की इलाम। यहां तक अगर जितने हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस क्या है, एक प्लान बनता किस तरह है। अच्छा, ये जो फर्स्ट सेशन है इसमें मैं ओवरऑल आप लोगों को एक आइडिया दूंगा, उसके बाद हम फिर थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। और ये जितना भी कोर्स है आप लोग ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, बाकी लेक्चर सारे के सारे MIT से और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख